Namaste student. Now you can study 11th class. Subject is psychology. That is called in Marathi मानस शास्त्र. ये psychology क्या होता है? There is a spelling. You can see in the psychology. You can start PSYCHOLOGY. So there is a spelling. You can remember PSYCHOLOGY. Psychology. Some students are say psycho. So there is a psychology. But in 11th class, you are choice so many subject. First, how many subject in 11th? First, English is there. English. Then environment education, second subject. And physical education, also compulsory subject. And physics and chemistry. These are the basic science subjects. So these all 5 subjects are compulsory. But your choice so many subject others. For example, psycho-socio. You can choose now psychology. So much thank you, your student, and welcome also. Choice my subject, that is psychology. ये साइकोलॉजी सोशियोलॉजी ऑब्लिक है, समझ में आया? आप साइकोलॉजी ले सकते हैं या सोशियोलॉजी ले सकते हैं, इसमें से एक ही ले सकते हैं, दोनों सब्जेक्ट नहीं ले सकते। अपने कॉलेज तक की बात है ये। तो ये आपके कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए। आपको चॉइस समझ में आया, साइकोलॉजी और सोशियोलॉजी। देन यू कैन सी in 11th class there is a first term and second term also. First term before the Diwali vacations, that is first unit test is there, and secondly first term exam for 50 marks and 25 marks for unit test. यहाँ फर्स्ट टर्म में जो होता है ना 25 मार्क्स यूनिट टेस्ट ली जाती है, और सेकंडली यहाँ फर्स्ट टर्म में 50 मार्क की जो फर्स्ट टर्म एग्जाम होते हैं, तो टोटल जो मार्क्स 75 मार्क्स इज देयर. Then after Diwali there is start second term, that is called second term. So second term there is a second unit test is there, that is a 25 marks, and final exam theory exam is here 80 marks, and there is a practical also in psychology, that is 20. 80 plus 20 is equal to 100, and this is a second unit test 25. So total marks is second term is 125. So 125 and here is a 75. So total is become 200. So out of these 200 you can take 70 mark for the passing. आपको पासिंग के लिए 70 मार्क लेना है, बट देयर इज अ कंडीशन, दिस इज कंपलसरी फाइनल एग्जाम. आपको फाइनल एग्जाम देना कंपलसरी है, ये देना ही पड़ेगा. तो 70 से ज़्यादा ही मार्क मिले तो आप पास नहीं होंगे 11 पे, ये ध्यान रखिए. फिर आप स्टार्ट करेंगे अपना सब्जेक्ट साइकोलॉजी. साइकोलॉजी देयर इज 8 चैप्टर्स इन द साइकोलॉजी. साइकोलॉजी में टोटली 8 चैप्टर्स है. फर्स्ट चैप्टर इज स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी, कथा कहानी बोलते हैं अपन, तो कहानी साइकोलॉजी या स्टोरी साइकोलॉजी, दिस इज फर्स्ट चैप्टर स्टोरी ऑफ साइकोलॉजी. देन सेकंड चैप्टर इज साइकोलॉजी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी. सो मेनी ब्रांचेस ऑफ साइकोलॉजी, फॉर एग्जांपल चाइल्ड साइकोलॉजी, social psychology, clinical psychology. So many branches you can study in second chapter, that is branches of psychology. Here is branches of psychology. Then self, you can study in self. What is mean self? आप क्या है, आपकी जानकारी आपके लिए क्या है, तो इसके सेल्फ स्टडी चैप्टर नंबर 3. देन 4th चैप्टर ह्यूमन डेवलपमेंट, और 5 चैप्टर इज healthy me and normal me. There is a 5 chapters name is a healthy me and normal me. And then 6th chapter is stress. So our life is very stress. Stress के बारे में जानकारी इसमें है. How many types of stress? So what is sources of stress? Then chapter number 7 is nervous system is there. You know about nervous system, central nervous system, brain. So science student are know about the nervous system. Then last chapter is memory. Memory. These are the last chapter. Memory is 2 types, STM and LTM, long term memory and short term memory. These are the syllabus of the 11 psychology. Now you can study about the first chapter, that is name of the story of psychology. Now start psychology. The first chapter, this name is given story of psychology. Why you are given the story of the psychology? Story means कथा, एक कहानी आप बोलते कहानी है. तो क्या कहानी है, क्या कथा है साइकोलॉजी के बारे में, ये जानकारी फर्स्ट चैप्टर में दी गई है. सो यू कैन सी हिस्ट्री ऑफ साइकोलॉजी. ही
साइकोलॉजी 19th सेंचुरी ही इज अ सब्जेक्ट स्टडी इन द फिलोसफी। आप थोड़ा सा इतिहास देख लीजिए साइकोलॉजी का, तो फिलोसफी में ये सब्जेक्ट था। सो देर इज नेम इज द फिलोसफी, साइकोलॉजी का नाम पहले फिलोसफी था। सो फिलोसफी इज साइकोलॉजी, बट नाउ हाउ इट इज डेवलप दिस सब्जेक्ट, देन इट इज बिकम ए साइकोलॉजी। देन फर्स्ट thinking view of the psychology. Second, Greek words say psycho. What is meaning of psychology? PSYCHO plus LOGOS. Psycho plus logis means psychology. There is meaning of psychology. What is psycho? There is say psycho means the soul and psycho means the mind. So soul of study is called psychology and mind of science is called psychology. There is a two meanings in this. Greek words say, Greek psychologists say that soul of science is psychology and mind of science is called psychology. There is a psychology, the meaning of the psychology. इस तरह से यहाँ मीनिंग बताया साइकोलॉजी की। सोल आत्मा का जो स्टडी होता है उसको साइकोलॉजी का है, माइंड यानी मन का स्टडी होता है उसको साइकोलॉजी कहा जाता है। तो ग्रीक में ये जो सिंबल आया है दैट इज सिंबल ऑफ साइकोलॉजी, PSY सोल एंड माइंड ऐसा लिखा है। तो यहाँ सोल और माइंड के लिए ऐसा सिंबल बनाया है अपने साइकोलॉजी में। ये ग्रीक वर्ड में 33 अल्फाबेट्स में है ये। तो सो दिस यू कैन सी द सिंबल और बुक्स दैट यू कैन स्टडी अबाउट 19th century. देयर इज अ जर्मन, so many philosophers and psychologists are saying that the science, soul of science, mind of science is a psychology. But there is again one psychiatric psychologist, William Wooden, in 1879 in Leipzig University. They can study in conscious level. Conscious level क्या होती है उसके बारे में स्टडी विलियम वुडन ने की है। तो वो कॉन्शियस बोले तो क्या, व्हाट इज कॉन्शियस, जानना। आप कॉन्शियस में है और अनकॉन्शियस, दीज आर द टू लेवल्स। कॉन्शियस आप जानते हैं, जानकारी है आपको, और अनकॉन्शियस आपको कोई जानकारी नहीं। आप गहरी नींद में है तो अनकॉन्शियस हो गया, और आप, मैं पढ़ा रहा हूँ आप सुन रहे हैं तो कॉन्शियस लेवल में है, दैट इज कॉल्ड कॉन्शियस। सो विलियम वुडन से दैट कॉन्शियस स्टडी ऑफ साइकोलॉजी मीन्स कॉन्शियस को उन्हें फोकस किया है यहाँ। सो फोकस इन कॉन्शियस लेवल, बट डॉक्टर सिगमंड फ्राइड फोकस ऑन द अनकॉन्शियस लेवल। सो विलियम वुडन फर्स्ट एक्सपेरिमेंटर इन द यूनिवर्सिटी लेप्जिग। सो विलियम वुडन इज कॉल्ड grandfather of psychology. So you can remember again, William Wooden is called grandfather of psychology because he first time study in experimental in the Leipzig University. So that is called William Wooden is the first man that is study about the psychology conscious level of behavior. Secondly, you can see Dr. Sigmund Freud. These are Australian psychologist or physician. They focus on the unconscious level. So unconscious level क्या होती है, पर्सनालिटी, अपनी मोटिवेशन हिडन आप छुपा के रखते हैं, तो वो उसकी ज़्यादा स्टडी अनकॉन्शियस लेवल में होती है। तो सिगमंड फ्राइड ने बताया पर्सनालिटी हो या मोटिवेशन हो, सो मेनी थिंग्स आर हिडन। आप सो मेनी थिंग हिडन करते हैं, thinking, motion, perception, these are hidden. So that is study of unconscious. So study of unconscious is called psychology, say Dr. Sigmund Freud. Then next scientist, psychologist William Watson, American scientist are there, study about the behavior. What say he? Study of behavior. Behavior, you know about behavior. बिहेवियर के बारे में आप परिवार में स्वभाव गुण बोलते हैं, इस परिवार में अच्छी गुण नहीं है, वर्तन बोलते हैं उसको। तो परिवार में मैनर्स नहीं है, कई बार आप बातें करते हो बोलते हैं गई गुजरी फैमिली है, उस व्यवहार करते हैं, आचरण ठीक नहीं उस फैमिली का, वो बच्चे का अच्छा नहीं है, ये बिहेवियर, दैट इज कॉल्ड बिहेवियर। तो बिहेवियर बोलते हैं उसको। तो स्टडी ऑफ बिहेवियर, उसके बारे में
विलियम वाइल्सन ने बताया। उन्होंने बताया देर इज अ स्टिमुली and that is affecting factor about the behavior. Stimulus, so many stimulus is called stimuli. अनेक स्टिमुलस बोल के स्टिमुली यहाँ है, तो ये आदमी है तो उसके अराउंड में पूरा वर्ल्ड है, तो अफेक्टिंग फैक्टर है स्टिमुलस। तो स्टिमुली इज अ सो मेनी स्टिमुली इन आवर वर्ल्ड। फॉर एग्जांपल आप किताब पढ़ रहे हैं, किताब ये स्टिमुलस है। देन यू कैन सी द मिरर में देख रहे हैं आप, और मिरर इज अ स्टिमुलस। तो सो मेनी थिंग्स आर स्टिमुलस। आप सिनेमा में गए, सिनेमा देखने को, सिनेमा हॉल स्टिमुलस। आप लाइब्रेरी में गए, लाइब्रेरी इज अ स्टिमुलस। सो these all the words are affecting factor on the our human behavior, that is called stimulus. इसको स्टिमुलस बोलते हैं। आप जग में इतने स्टिमुलस है, ये अफेक्टिंग करे। टीवी देख ले रहे आप, तो टीवी क्या है यार, स्टिमुलस है आपके लिए। तो इसी तरह से स्टिमुली यानी अनेक वचन, स्टिमुलस, इट इज अ stimulus become so many stimulus, it called stimuli is there. Then mental process. Here mental process means what? The thinking, feeling is there. Internal and external factor of the behavior study, that is called mental process. Mental process is nothing but the internal and external factors of study of the human behaviors, that is called mental process. फॉर एग्जाम्पल यहाँ दिया है मेमोरी, अटेंडेंस, मोटिवेशन, थिंकिंग, ये सब जो है ये चीज इंटरनल एक्सटर्नल फैक्टर है। परसेप्शन, these are the internal external factors, these are the study in the mental process, that is called internal external factors. So next thinking is there. Scientific methods means what? There is the observation in psychology and generalize, also analyze, so it is called scientific method. human beings, आप जो आपका वर्तन है उसके बारे में जनरलाइज होता है, एनालिसिस आप कर लेते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं, इसलिए साइकोलॉजी में साइकोलॉजी को साइंटिफिक मेथड से स्टडी की जाती है। सो नेक्स्ट इज देयर बी इज इक्वल टू एस ओ आर। वैटसन से दैट बी इज इक्वल टू एस ओ आर। व्हाट इज मीनिंग दैट? B means behavior, S means stimulus, O means organism, R means response. So organism give the stimulus response. For example, there is example for you. आपके क्लास में टीचर है, तो टीचर इज अ स्टिमुलस। तो स्टूडेंट है ऑर्गेनिज्म, सो मेनी स्टूडेंट्स आर देयर। एंड रिस्पॉन्स मीन्स रिस्पॉन्स कैसे देते हैं, कोई बच्चे आंसर देते हैं, कोई आंसर नहीं देते हैं, तो दैट इज रिस्पॉन्स। कोई बच्चे खामोश होते हैं, तो इस तरह से रिस्पॉन्स इज डिफरेंट बट स्टिमुलस इज सेम। यू कैन सी हियर इज व्हाट हैपन, स्टिमुलस इज सेम, ऑर्गेनिज्म इज डिफरेंट एंड रिस्पॉन्स इज आल्सो डिफरेंस। तो इस तरह से ओ एंड और इज आर द डिफरेंस बट स्टिमुलस इज सेम। शिक्षक तो ये वही है, लेकिन ऑर्गेनिज्म स्टूडेंट है, अलग अलग रिस्पॉन्स दे रहे हैं। कोई आंसर दे रहा है, कोई आंसर नहीं दे रहा है, कोई ध्यान दे रहा है, कोई ध्यान नहीं दे रहा है, तो रिस्पॉन्स अलग अलग होता है। इस तरह से उसको बिहेवियर कहते हैं, अलग अलग बिहेवियर होता है आदमी का। सो एनीथिंग पर्सनल एनिमल, दैट इज कॉल्ड हियर इज अ स्टिमुलस। सो इन योर बुक्स देयर इज अ वन एक्टिविटी इज देयर फॉर द स्टिमुलस। स्टिमुलस के बारे में एक एक्टिविटी दी गई है अपने किताब में, दैट इज एग्जाम्पल दिया है एग्जामिनेशन का। आप एग्जाम को कैसे स्टिमुलस बोल के देखते हैं, वो उद्दीपक किस तरह से। कोई बच्चे स्ट्रेस आता है एग्जाम बोले तो, कोई बच्चों को अच्छा ही लगता है। सो देर इज एक्टिविटी इन योर क्लास लास्ट, दैट इज एग्जाम्पल इज अ एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन के बारे में पूछिए बच्चे को बहुत कि ये तुमको स्टिमुलस कैसा लगा, तो उसके बारे में आप जानते हैं। कोई बच्चों को बहुत अच्छा लगता है एग्जाम, कोई बच्चों को बहुत स्ट्रेस आ जाता है। सो दैट इज अ सेम स्टिमुलस बट रिस्पॉन्स इज देयर डिफरेंट। सो देर इज अ एक्टिविटी इन योर क्लास। नाउ यू कैन स्टॉप हेयर, देन नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट डिस्कशन, नेक्स्ट पीरियड। सो थैंक यू वेरी मच।